Like all we have seen recently, the Qatar 2022 FIFA World Cup. So it was also viewed by people on geo apps. So this technological intervention changed the nature of viewership also. So these were the points which I'll be taking up for my discussion. First, a little bit of basics. What is technology? How scholars have perceived technology, and what a common man perceives about technology. If we go by a general definition of the word technology in Oxford Dictionary of English, technology means the application of scientific knowledge for practical purposes. Applying scientific knowledge for any practical purpose is termed as technology in academics. There is a narrow definition of it also, like if a common layman understands and thinks. Humans use material objects, tools, machines, and they get something constructive done by the use of that tools or machines. This process is termed as technology. This is a narrow definition which a layman understands. And when we come to a broader perspective, technology are the methods of organizing and the use of systems and techniques which we use for better results in any field, in any form. So in these two aspects, we have just a development of intellect and understanding of that technological aspect from a common man to a expert of or a intellectual or academician. The whole range of means by which humans act on their environments or seek to transcend the limits of their natural capacities is termed as technology. This is a definition of Social Sciences Dictionary. So in that aspect, technology is a very widened term. Technology is a very widened concept which alters, assists, and helps man to enforce or to act in convenience with the environment. Sports, you all very well know, is a human enterprise that represents multitude of human compulsions, desires and needs, the urge to be competitive, to cooperate, to excel, to develop, to play, to love and be loved, and to find meaning in one's own existence. So this is a very widened term, widened definition of sports. So when we place technology before sports, that means we are perceiving the outside intervention in a person's sports arena. Because different experts of different fields assists, helps, and enforces their ideas on sports by external stimuluses. For example, if we say, take an example of a runner, a marathon runner. The basic equipment is the shorts and the t-shirt or a vest, shoes, socks, that are the basic equipments a runner use for running. But with technological assistance like sunglasses, some necklace which helps supply of blood,
some socks, special kind of, that helps supply of blood to the legs and the fingers, toes. So these type of technological interventions supports a person in enhancing his capability. So this is one simple example of technological intervention in sports, which is increasing day by day. The motto which we see of Olympic, Citius, Altius, Fortius, meaning faster, higher, stronger. This is a principle of a natural athlete, but it enforces a psyche of society which builds a person for a competitive environment. ये जो आइडिया है, जो मोटो है, to be faster, to be higher, to be stronger, when we see its public manifestation, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, कवर करते हों डिफरेंट इवेंट्स को, I hope English and Hindi will do, or I'll speak in English only. You can speak with both the languages, no problem, sir. Both language, sir. Both language. Both You can language, go sir. bilingual. Okay, no problem. So, the motto of Olympic is an enforcement by the viewers on sports persons to perform extraordinarily. अगर हम कोई भी ओलंपिक्स देखते हैं या कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप देखते हैं, and the viewer and the audience plus the media houses, they expect something new, something extraordinary, something enhanced performance. Because the basic question, कोई भी व्यक्ति जब देख रहा होता है इवेंट या उससे कोई संपर्क करने वाला होता है, when discussion happens, पहला सवाल यही किया जाता है कि कौन सा नया रिकॉर्ड टूटा या कौन सा नया रिकॉर्ड बना, व्हाट न्यू हैपेंड. ये जो एक नए की उत्तेजना है, इसका आधार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, जिनका इंटरवेंशन ह्यूमन को प्रोग्रेसिव और बेटर डे बाय डे बनने के लिए उत्तेजित करता है, उसको इस व्यू को इन्फोर्स करता है. दो ये एक पैराडॉक्स भी है, क्योंकि इसमें एक अर्ज रहती है जिसमें एक ड्राइव होता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस के लिए, साथ साथ एक डिजायर भी होता है कि कुछ बेहतर किया जाए, नया रिकॉर्ड बनाया जाए, बेटर परफॉर्मेंस की जाए, जिससे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे एक्सेल किया जाए. Since last 30 years, we have been seeing the 100-meter race. और 100-meter race में from Lewis to Usain Bolt, gradually the reduction in time happened, and that was assisted by technological interventions, because that depends on so many factors also, external factors, air ka, wind ka pressure kya hai, and you know very well how a runner equips himself to develop all that capabilities to defeat his competitors in 100-meter, and day by day that record is getting reduced. Means a human is approaching a post-human or superhuman capabilities, and that is happening with the assistance of technology. But there is another aspect of it which is concerning with morality, नैतिकता से ethics के साथ, जो कि एक बेसिक आइडल भी था, एक ऐसी गुणवत्ता का या एक ऐसा विचार था जो यूनानी विचार था जिसने ये मॉडर्न ओलंपिक्स को शुरू किया था. एक
ऐसी इमेज, यू हैव सीन दैट emblem of Greek man covering globe on his shoulder. This image of a natural athlete is a contradictory to modern perception of a superhuman or a human with extreme capabilities. So कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स, एक ऐसा कन्फ्रंटेशन पाते हैं हम, जिसमें कि मेजर जो इंटरवेंशन रही है वो रही है टेक्नोलॉजी की, जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है और आगे की आगे बढ़ता जा रहा है. American scholars, those academicians who study sports, and Europeans, starting in 2007 in different parts of world, from Copenhagen to Berlin, Paris, London, New York, various conferences took place to study one important concept: cyborg horizons, cyborg manifestos. These aspects cover an important aspect of sports persons, a capability of a person which is beyond common man's reach. एक ऐसी शारीरिक क्षमता एक स्पोर्ट्स पर्सन को टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट से हासिल करवाना, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक ऐसे लेवल पर ले जाए जहां उसके कंपटीटर से वो बहुत आगे एक्सेल कर जाए. 3 ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको बहुत माइन्यूटली स्टडी किया, इस कंसेप्ट को परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने टेकअप किया. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो टेड बर्ट्रैंड ने कही है, उन्होंने अपने रिसर्च में इस साइबॉर्ग हॉरिजन के कंसेप्ट को एक नई दिशा में ले जाते हुए एक नए हॉरिजन से उसे देखा और कहा कि जो गोल्ड मेडल्स के लिए अंधाधुंध दौड़ लगी रहती है ह्यूमन कॉम्पिटिटर्स के बीच में, एक ड्राइव होता है एक एथलीट में टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस increasingly and unabashedly with the capacity of post-human. Though I differ with him in this concept of post-human, but उनकी टर्म ये एक इशारा करती है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के साथ अपने आप को इस तरह से बिल्ड करता है, इस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है. उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, मीडिया प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स एक्सर्ट, बट ही इज अल्टरिंग हिज ओन बॉडी. एक ह्यूमन होने के एसेंस को जो अल्टरेशन की जा रही है उसके द्वारा, with only prime objective of earning gold medals in Olympics or world tournaments. ये डिफरेंट परसेप्शन है टेड बटनर के अनुसार, क्योंकि वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी और कोई प्रैक्टिस करता था या एक वेल मेंटेन ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ, तो उसको बहुत नेगेटिवली देखा जाता था. लेकिन अगर आजकल नहीं करता है कोई तो उसको लेजी और कहे ये तो परफॉर्मेंस नहीं चाहते हैं, मींस इज लेथार्जिक, इज लेजी, ही डज नॉट वांट टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स. चाहे वो परफॉर्म नेचुरली कर गया हो, बट एक इस तरह की परसेप्शन. सो दैट चेंज हैपेंड बिकॉज
वी सी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन न्यू लाइट्स। एक नया डायमेंशन है टेक्नोलॉजी असिस्टेंस को साइबर्ग हर्जन के थ्रू देखने का। दूसरे जो स्कॉलर हैं डोना हरावे, she has worked on the Cyborg Manifesto. In the 1970s, she firstly argued that we were living in an age of post-human age, जिसमें ह्यूमंस ने अपनी कैपेसिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सटर्नल स्टिमुलस से इस तरह से इनहेंस कर लिया है कि he or she can do extraordinary things which a common human cannot do. An exceptional capability of achieving different sports arena achievements. She pointed to many aspects of technology which are crucial part of or necessary part of modern life. See the pacemakers, processed foods, intensive care units, doping, artificial hip joints, heart rate monitors, synthetic clothing, and the extra list is unending. These external stimulus helps sportsperson enhance. And Donna Haraway says that this capabilities attained by sportsperson makes them from human to a post-human stage or age. Another scholar who deliberated too much on this is Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil argued that our knowledge of and our ability to manipulate the physical environment will reach a tipping point in next 20 or 30 years to such a level that a common person cannot attain that achievement of a sports person which he is attaining in स्पोर्ट्स एरेना। किसी भी स्पोर्ट्स में आप ले सकते हैं, एथलेटिक्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, स्कीइंग में, रोइंग में, एनी फील्ड, एनी स्पोर्ट्स फील्ड, आप किसी में, बॉक्सिंग में, जहां पर जेनेटिकल इंटरवेंशंस, मास मसल का, ऑक्सीजन रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी, जिसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करके एक ह्यूमन को एक सुपर ह्यूमन बनने के लिए असिस्ट किया जाता है। फुटबॉल्स में विद एक्सटर्नल असिस्टेंट, शू की शेप, कर्व कितना दिया जाएगा, किससे कितना बॉल को बेंड किया जा सकता है। यू माइट हैव सीन दैट फिल्म बेंड इट लाइक बेकम। हॉकी में एस्ट्रोटर्फ आने से पहले घास पर खेली जाती थी, फिर एस्ट्रोटर्फ आने से किस तरह से नेचर एकदम गेम की चेंज हो गई। अब इन फ्यूचर इट माइट बी पॉसिबल कि फाइबर के स्टिक्स इस्तेमाल हो, जिससे कि और स्पीड बढ़ जाए गेम की, बॉल के रनिंग की और स्पीड बन जाए, और एक ऐसा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स क्रिएट हो जाए जिसमें एक नॉर्मल लिविंग वाला ह्यूमन बीइंग जस्ट ऑडियंस रह जाए, पार्टिसिपेट ना कर पाए, बिकॉज द पर्सन्स हु आर प्लेइंग इनसाइड द फील्ड आर एक्सेप्शनली डिफरेंट ह्यूमंस, ह्यूमंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज, विद असिस्टेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एक एंडेमिक होल्ड कर लिया है ह्यूमन लाइफ्स पर, ह्यूमन बॉडी पर, और स्पोर्ट्स पर्सन भी इससे बचा नहीं है। और इस सब के पीछे देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक,
स्पोर्ट्स जो है वो अब एक इंडस्ट्री के तौर पर, एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के तौर पर, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए भी, जो कभी एक लेजर, एक एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी होती थी, अब वो एक इलीट इवेंट, एक प्रोफेशनल एरेना, एक कॉरपोरेट नेक्सस उसमें डेवलप हो गया है, जिसमें कि मनी इन्वॉल्व हो गया है लार्ज स्केल पर। कैपिटलिस्ट्स आर investing in a huge manner to earn more money, जिसमें certain portion of that money goes to the sports person who are the performers, sorry. क्योंकि जहां स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हो रही है, वहां 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, which I term them as 3 M's: mankind, matter and machines. Humans जिसके ऊपर इतना ज्यादा परफॉर्मेंस का प्रेशर है, क्योंकि स्टेक्स बड़े हाई हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देना उसके लिए, उस स्पोर्ट्स एरेना में रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, फिट होगा तो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके लिए मैटर जो है, चाहे वो स्टेडियम्स बनाने की तकनीक हो, इक्विपमेंट्स हो, बॉडी इनहेंसर्स हो, सब पार्ट्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज machines which assist a human to enhance that capabilities, जिसमें बहुत सारे, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, आई वुड से। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी विशाल उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। इट कवर्स जेनेटिक्स, इट कवर्स फिजियोलॉजी, इट कवर्स clothing, textiles, it covers softwares, it covers IT, it covers mechanical, kinetics, ergogenic aids. इन सब का बहुत बड़ा रोल है एक स्पोर्ट्स पर्सन को सुपर ह्यूमन या पोस्ट ह्यूमन एज में कन्वर्ट करने में। And it's a $1 billion इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है मीडिया हाउसेस द्वारा, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा, बिडिंग्स होती हैं, एंड दैट एमेच्योर एस्पेक्ट which was perceived when Olympics was initially thought of, और वो एक एमेच्योर एस्पेक्ट आज किस तरह से इलीट प्रोफेशनल उसमें कन्वर्ट हो गया है, जिसमें सबसे क्रूशियल रोल जो रहा है वो टेक्नोलॉजी का रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन से जो कैपिटलिस्ट या जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जिनको लगा कि ये एक ऐसा एरेना है जिसमें पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर खूब पैसा कमाया जा सकता है। बीसीसीआई को आप देख लीजिए, और रिसेंटली WFI जिसके पीछे काफी हंगामा मचा हुआ है, फेडरेशंस के हेड ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास मनी है। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड हो ना हो, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मनी पावर एंड मसल पावर, आई होप ऑल आई एग्री विद दिस। Yes, sir.
क्योंकि हर गेम के फेडरेशन में या ऑर्गेनाइजिंग जो कमिटीज होती हैं या जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आई वुड से, उनमें सब में, चाहे वो बॉक्सिंग फेडरेशन हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, ऑल बिग पॉलिटिशियंस, क्रिकेट हो, आप क्रिकेट से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, हिंदुस्तान के सभी जो बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं दैट आर पार्ट ऑफ बीसीसीआई, चाहे वो पहले रहे हों यूपीए के इरा में या अब एनडीए के इरा में, सब बड़े बिग मसल power persons are involved in sports. Those who are the key functionaries, different aspects को cover करने के लिए. So ये जो एक aspect है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो डेवलप हो गई है स्पोर्ट्स के, इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है मशीन्स का, वो एक क्रूशियल रूप धारण करता जा रहा है. पहले एक्सरसाइज फिजिकली आउटडोर की जाती थी, एंड नाउ यू कैन सी इन एवरी टाउन दे आर जिम्स which are equipped with equipments and artificial environment, physical environment जो है, चाहे ACs लगाए हुए हैं where no fresh air is available, and supplements हैं available that enhances your mass building, that enhances your muscle growth, और वो, but ऐसा कोई स्टडी नहीं है जहां उसके इफेक्ट्स को जज किया जा सकता हो कि वो जो आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं हम जो सब्सटेंसेस या डॉप्स, वो किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को अल्टर कर रहे हैं. वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट दिस सब्सटेंस हेल्प अस टू इनहेंस आवर स्ट्रेंथ, बट उसका बॉडी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, किस तरह से उसके फ्यूचर में जाकर, आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे 3 या 4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत मसल मैन टाइप हीरो होते थे, टीवी एंकर्स या टीवी हीरोज होते थे, एंड दे डाइड इन 40 years ऑफ एज, और जिम में काम करते हुए, एक तो आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम्स, बट आप देख सकते हैं, मतलब बॉडी देखें तो आप उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग, बट हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एट द एज ऑफ 40 और 42. सो दैट मीन्स दैट substances has altered their body in a some manner. अब उन चीजों के ऊपर फाइंडिंग रिसर्च को मीडिया तो हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस का मीडिया है, और वो पूरा जो इंडस्ट्री है उस पर क्वेश्चन मार्क लगने लग जाएगा. सो ऐसे में एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें एक ह्यूमन को विदाउट स्टडिंग प्रॉपरली बस इनहेंस कर देनी है उसकी कैपेबिलिटी, तो वो जो एथिक्स और मॉरलिटी के इश्यूज में कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरता है. आई बिलीव सो. एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है स्टीवन लुबर, जो स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी को जिन्होंने काफी स्टडी किया है, और उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया है कि किस तरह से स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है उससे जो मटेरियल कल्चर है उसका नेचर, उसका स्वरूप बदलता है, और किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को एक सार्थकता के साथ लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ती है उसके साथ. क्रिकेट का बैट आप सभी जानते हैं विलो की वुड से बनाया जाता है जिसमें बाउंसिंग कैपेसिटी काफी हाई होती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से आप सभी वाकिफ होंगे कि बैट्स की शेप्स, उसकी
जो एजेस हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाता है टू गिव अ बैट्समैन एक्स्ट्रा एज ओवर हिज कॉम्पिटिटर्स। वुड्स की सिलेक्शन के साथ साथ उसकी शेपिंग, जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है उसका, जो पोटेंशियल एनर्जी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको थॉरली स्टडी किया जाता है। टेक्निक्स को डिवाइस किया जाता है उन बैट्स को ऐसी शेप देने के लिए जिसमें कि वो, और इसके पीछे इन्वेस्टमेंट किसकी है? स्पोर्ट्स पर्सन तो एक परफॉर्मर है, वो तो एक एरेना में उतरता है और टू रिमेन इन दैट एरेना एंड टू रिमेन इन दैट इंपॉर्टेंस ही हैज टू परफॉर्म, ये उसका प्रेशर है। लेकिन बाहर जो है मीडिया हाउसेस, जो इंडस्ट्रीज हैं उस स्पोर्ट से लगती हुई, वो सभी चाहती हैं कि परफॉर्मेंस इनहेंस होती रहे ताकि वो नए आयाम को लेकर आए और उनका बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस करता रहे। और इससे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है एडवर्टीजमेंट का। आप सभी ने देखा होगा हमारे मास्टर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए। आप में से कोई मुझे बता सकता है उनके जो बैट था उस पर क्या स्टिकर लगा होता था? MRF. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। MRF. So the business house which builds MRF tires, उन्होंने एक ऐसे स्पोर्ट्स आइकन को अपने लिए डिवाइस किया जो कि रिलायबल हो, टू गिव अ पिक्चर इन पीपल माइंड, लोगों के दिमाग में ये चीज को, उनके जहन में इस चीज को बिठाने के लिए कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की बैटिंग रिलायबल है उसी तरह से हमारा जो टायर है वो भी रिलायबल है। सो यू कैन गो फॉर दैट। सो विद अ इंडोर्समेंट टू सचिन तेंदुलकर, द MRF enhanced their production capabilities, enhanced their market, enhanced their arena of influence in tire industry. So ये जो एक नेक्सस है जिसमें ह्यूमंस को मशीन के तौर पर असिस्टेंस लेकर उन्हें एक टूल के तौर पर, एक वेपन ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इस्तेमाल जो किया जाता है, दैट इज वन न्यू डायमेंशन ऑफ कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टेशन। पूंजीवाद की एक नई तरह की अवधारणा को ये प्रदर्शित करता है, जैसा स्टीवन लूगर हमें बताते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का, जो डायरेक्टली ऑडियंसेस या व्यूअर्स से कंसर्ट है, या कंज्यूमर्स जो हैं उसके, चाहे वो विजुअल कल्चर के कंज्यूमर हैं, चाहे मटेरियल कल्चर के कंज्यूमर्स हैं, या फिर स्पोर्ट्स कल्चर के कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए भी। जब मैं फुटबॉल खेलता था, आई नेवर वोर एडिडास शूज। आते ही नहीं थे हिंदुस्तान में, मिलते ही नहीं थे उस समय, और मिलते भी थे तो बहुत महंगे होते थे। आई गेस मोस्ट ऑफ यू एग्री विद मी। Yes, sir. क्योंकि उस समय पर स्पोर्ट्स पर्सन के पास जो अवेलेबल शूज होते थे वो चाहे तो जालंधर से बनकर आते थे या बंगाल से बनकर आते थे, और बहुत सारे फैक्टर थे रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। लेकिन अब एक स्मॉल टाउन में आप देख लीजिए, सभी तरह के इंपॉर्टेंट ब्रांड्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, स्पोर्ट्स शूज के, फुटबॉल शूज के और डिफरेंट। तो ये मटेरियल कल्चर को डेवलप करने में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इसने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि चाहे वो स्पेक्टेटर्स हों, चाहे पार्टिसिपेंट्स हों या कंज्यूमर्स हों, घर में बैठा भी एक
कंज्यूमर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट्स करके डिफरेंट कंपनीज बेनिफिट उठा रही हैं, दे आर जस्ट कैप्चरिंग दैट। क्योंकि इस व्यूअरशिप के साथ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से बहुत कुछ बदला है। पहले क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर ही सुनी जाती थी 20वीं शताब्दी में, लेकिन आज यू हैव एप्स टू डाउनलोड जिसमें आप डिफरेंट मैचेस को देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट को स्टॉप करके आप व्यू कर सकते हैं। और इस तरह से कंप्यूटर असिस्टेड जो इंटरवेंशंस हुई हैं उसने बिल्कुल एक देखने के नजरिए को, एक मैच को वॉच करने के नजरिए को, व्यू करने के नजरिए को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। और स्पेशली इन स्टेडियम्स लाइव मैच के साथ साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन होगा कि हाइट ऑफ इमोशंस जब कोई भी मिस कर जाए तो दैट वाज रिपीटेड सो दैट एंटरटेनमेंट and that endorsement of commercial ventures should not get diluted। वो बना रहना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के, जो स्पेक्टेटर है, जो स्पोर्ट्स एरिना का पार्टिसिपेंट है, वो कुछ भी मिस ना कर सके, जिसके पीछे कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हो, इंटरनेट यूज के थ्रू हो, उसका एक्सपेंशन हो टेलीविजन यूसेज का या कवरेज का। जब 1979 में ESPN आया था, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स नेटवर्क, उसके बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन आया स्पेक्टेटरशिप में, व्यूअरशिप में, जिसने स्पोर्ट्स को वॉच करने के तरीकों में, उनको जज करने के तरीकों में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया, एक ऐसा बदलाव लाया जिससे स्पोर्ट्स बिल्कुल एक स्पोर्ट्स लैंग्वेज में कहते हैं ना ट्यूरिंग पॉइंट या ट्यूरिंग टेस्ट, वो पास कर गया, जिसमें एक ह्यूमन को ये नहीं समझ आता है मशीन के सामने बैठकर कि वो मशीन है, रोबोट है, क्या ह्यूमन है। ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट ट्यूरिंग टेस्ट, एंड वो डे बाय डे इज इंक्रीजिंग एंड वो एक ऐसे नए आयाम की तरफ ले जा रहा है जिसमें व्यूअरशिप का टोटली जो लैंडस्केप है, जो इकोसिस्टम है, जो एस्पेक्ट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, बदल गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेंडर कमेंट्री का। पहले आप कोई भी क्रिकेट वॉच करते थे या फुटबॉल या किसी में भी, यू विल फाइंड ओनली मेल कमेंटेटर्स जो कि उस गेम की असेसमेंट और कमेंट्रीज हमें पेश करते थे। लेकिन रिसेंटली कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें यू माइट हैव सीन अ लेडी which was giving commentaries on TV and indulging in different discussions, Samra Hunter, जिसने मेसी के जो व्यूज थे उनको स्पेनिश में, बिकॉज शी इज टीवी कमेंटेटर ऑफ ला लीगा टीवी ऑल्सो, सैमरा हंटर ने एक ऐसा जेंडर इंटरवेंशन किया मेल डोमेन में जिससे कि बहुत जेंडर सेंसिटिविटी या एक नया आयाम व्यूअरशिप में और एक मेल डोमिनेटेड एरिया में एक नई इंटरवेंशन से जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्वालिटी का एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह से NFL जो यूएस में होती है, नेशनल फुटबॉल लीग, वहां पर गेल सिरेन्स ने ऐसा ही बदलाव लाया था मेल डोमिनेटेड कमेंटेटर्स के लैंडस्केप में, एक ऐसा बदलाव जिसमें कि एक जेंडर इंटरवेंशन से कमेंट्री करने की और कमेंट्री सुनने की
जो विधि थी उसमें बिल्कुल बदलाव आ गया था। सो ये एक अलग तरह की डायमेंशन है जिसकी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसने न केवल पब्लिक कल्चर जो है स्पोर्ट्स का, एथलेटिक्स का, एडवर्टीजमेंट का, कंज्यूमरिज्म का, उपभोक्तावाद, उसमें बहुत बड़े बदलाव लाए हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के तहत। जो हम एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे कि किस तरह से कॉर्पोरेट और स्पोर्ट्स का जो नेक्सस है, जिसकी रिफ्लेक्शंस हम मटेरियल कल्चर में, विजुअल कल्चर में, स्पोर्टिंग कल्चर में देखते हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी इमेजेस और एक ऐसा विजुअल कल्चर क्रिएट किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे कि उसका विस्तार जो है ऑडियंस का, व्यूअर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, इंस्टीट्यूशंस का, वो वाइडन किया जा सके। जैसे कि एक स्पोर्ट्स हिस्टोरियन थॉमस जे सजटेथ, अपनी बहुत सुंदर किताब है उनकी मटेरियल कल्चर एंड अमेरिकन स्टडीज स्कॉलर में, वो मटेरियल कल्चर की स्पोर्ट्स को लेकर स्टडी करते हैं और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि थिंग्स कैन बी आर्ग्यूड बिकॉज दे embody मीनिंग एज वेल एज दे कन्वे दैट मीनिंग। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फुटबॉल है, एक मैच में फुटबॉल के ऊपर दोनों नेशंस का फ्लैग है, टाइमिंग है, डेट है, and that football carries a deeper meaning for a deeper audience for a very longer time. Though it has currency, money तो है ही उसमें इन्वॉल्व, बाद में ऑक्शन की जाएगी और ऑक्शन के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस अर्न किए जाएंगे। ठीक इसी तरह से गुड्स जो हैं वो एंटर करते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में एक मॉडर्न लाइफ के, और जो दोनों तरह के इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करते हैं, कॉन्टिन्यूटी का भी और चेंज का भी। जैसा कि हमें ग्रांट मैक्रेन कहते हैं, वो कहते हैं गुड्स एंटर हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एज वाइटल एजेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, दे ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ्स। और ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एक ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जो कि स्पोर्ट्स के नेचर को, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिसेस को, स्पोर्ट्स के प्रोसेसेस को, गेम प्लेइंग के प्रोसेसेस को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, और इसमें टेक्नोलॉजी हैज अ वेरी क्रूशियल रोल। योगेश जी, मुझे बता देना व्हेन आई हैव टू कंक्लूड, व्हेन माय टाइम्स एंड। जैसा आपको ठीक लगे सर। 11:30 बजे तक आपका टाइम है, तो आप बोलने का है कि इंटरेक्शन अभी है? 1 घंटा आप सीधा सीधा लेक्चर देना चाहें तो सीधा दें, या उसको एक्सटेंड करना चाहें और क्वेश्चन आंसर के लिए जितना भी समय देना चाहें, आप पे डिपेंड करेगा। चलो, then I conclude and have a dialogue with the participants. Their comments and questions I'll take. जी जी प्लीज। हाँ, I'll conclude in 5 minutes and then I'll take questions and comments and their observations and have a discussion with them, have a dialogue with them. So, जो भी हमने आज डिस्कशन किया है पिछले लगभग 1 घंटे में, उसमें 4 से 5 चीजें महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं, जिसमें पहला, चाहे टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें स्पोर्ट्स में, लेकिन उसके कारण जो चेंज आ रहा है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल एड्स हमें असिस्ट कर रही हैं स्पोर्ट्स फील्ड को, वो एक कॉम्प्लेक्स पावर एंड पॉलिटिकल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है,
ये एक ऐसी पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत सारे जो भागीदार हैं, फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन टू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, मीडिया हाउसेस, कमेंटेटर्स, एक इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की जो ह्यूमन रिलेशंस को नए मैनिफेस्टेशंस में रिप्रेजेंट करती है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पावर एंड पॉलिटिकल रिलेशन के तौर पर जो हम अनमूनन अखबारों में पढ़ने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है उन सारी एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स के इवेंट्स में। तीसरा जो महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी का, वो प्रोस्थेटिक्स, बायोनिक्स। हालांकि मैंने प्रोस्थेटिक्स को टच नहीं किया है, मैं एक एग्जांपल भी देना चाह रहा था उसका, पर वो ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ टाइम, और आई वुड से कि वो डिस्कशन मूव्ड फ्रॉम अ डिफरेंट एरेना। उसमें a runner of South Africa, you might be knowing him very well, उन्होंने कोशिश किया कि वो जो ब्लेड्स के साथ रन करते हैं उसके साथ उन्हें 200 मीटर में कॉम्पीट करने के लिए दिया जाए, लेकिन जो इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन है उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो सब एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया जो एक नॉर्मल एथलीट के भागने में और एक आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट जो ब्लेड्स के तहत वो भाग रहे हैं उनमें फर्क है। सो दैट इज अनइक्वल कंपटीशन। लेकिन जो बायोनिक और जेनेटिक्स का इंटरवेंशन है एक पोस्ट ह्यूमन को, एक सुपर ह्यूमन को क्रिएट करने में स्पोर्ट्स एरेना में, वो एक नेचुरल ह्यूमन के व्यू और उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। And lastly, with changing times and with changing technology, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस तो ऐसी ही बनी रहेगी। हाँ, कुछ स्पोर्ट्स अहमियत में कम हो जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे। हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन गेम होता था, जिसके बारे में परसेप्शन भी है कि वो नेशनल गेम है हमारा। लेकिन आप देखिए आज उसका प्लेस जो है नेशनल लेवल पर दूसरे गेम्स ने ले लिया है उतने बड़े दर्जे पर। शूटिंग ने, बॉक्सिंग ने, रेसलिंग ने, जो पहले इतना हाईलाइटेड नहीं था, कबड्डी ने, क्रिकेट ने। सो विद चेंजिंग टाइम थिंग्स चेंजेस विद असिस्टेंस एंड डिनायल ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अपने। हेलो। हाँ जी नरेंद्र जी, प्लीज। नमस्कार सर, डॉक्टर नरेंद्र। हाँ जी सर, यस यस। कैन यू गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? डॉक्टर नरेंद्र, डीएवी कॉलेज फरीदाबाद सर। ओके सर, नरेंद्र जी प्लीज। सर मेरी स्पेशलाइजेशन जिम्नास्टिक है। अच्छा सर। तो जैसे आपका टॉपिक भी रहा है स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या बेसिक लेवल पे पॉसिबल है ये चीज? क्योंकि जब तक बेसिक लेवल पे पॉसिबल नहीं होगी तो हम अचीवमेंट की या टेक्नोलॉजी की, टेक्निक्स की, किसी के बारे में भी है ना फिर आगे बात नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने कहा कि हॉकी। हाँ जी, हाँ जी। हॉकी सर आज भी हमारा ना नेशनल गेम है, मेजर गेम है, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू है ना बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं। क्या ये मेजर गेम में नहीं हो सकता? जैसे आपका भी स्पेशलाइजेशन फुटबॉल है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मेजर गेम और जो हमारे है ना इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, दोनों में है ना काफी डिफरेंस है। हाँ जी। और जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, जैसे काफी है अभी इंडियन पॉपुलेशन और चाइनीज दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है पॉपुलेशंस में, लेकिन फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
क्या ये है ना बेस लेवल पे पॉसिबल हो सकती है? सर बेस लेवल पर इस चीज को पॉसिबल करने के लिए देखिए, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एग्जॉस्ट कर दी है। आप देखिए जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, यस वो अब हर एरिना में डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही हैं। मींस वो इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि वी हैव टू मूव टू प्राइवेट पार्टनरशिप्स। यस, यू आर राइट सर। प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ, क्योंकि आप देखिए, आप हरियाणा का ही उठा लीजिए, कोई भी बड़ा विनर होता है उसको करोड़ों रुपए दिया जाता है जब वो कोई भी मेडल जीत कर आता है। लेकिन क्या उसको फैसिलिटेट किया गया था? वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था? नहीं। विजेंद्र को मैंने बहुत पास से देखा है, क्योंकि भिवानी मैं भी खेलने जाता था और विजेंद्र उस समय प्रैक्टिस भी करते थे। हाँ जी। तो हवा सिंह जी ने उन्हें अपने आप से तैयार किया। आज अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपने फैसिलिटीज को देकर उन्हें तैयार किया। लेकिन ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड दे दिया गया उन्हें, अच्छी बात है। लेकिन क्या भिवानी में स्पोर्ट्स के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया कि हम विजेंद्र जैसे या और दूसरे जो बॉक्सेस हैं उन जैसे 100-200 जैसा क्यूबा ने किया है? यस यस, क्यूबा ने एक्सेप्शनली कर लिया है। जिम्नास्टिक का ही देखें आप, जिम्नास्टिक चाइनीज और कोरियन जिम्नास्ट जो हैं दे आर डूइंग एक्सेप्शनली, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक पर्टिकुलर एज पर बच्चे को तैयार करना शुरू कर देते हैं। सो हमारा क्या है कि विनर्स को पोस्टर बॉय बना दो, सो लोग अपने आप इंस्पिरेशन लेकर पैसे लगा लें और तैयारी कर लें। यू आर राइट सर। सो मतलब स्टेट तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शेड कर रहा है ना अपने आप को। यही बात है ना सर, जैसे आपने ना टेक्नोलॉजी बात की, मैं फरीदाबाद में हूँ तो मेरी नॉलेज में है एक बच्चा भिवानी का एक जिम्नास्ट था, तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो इंजर्ड हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी है ना गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, फेडरेशन, एसोसिएशन, किसी ने कुछ नहीं किया सर। अगर टेक्नोलॉजी अगर बच्चों के यहाँ पे है ना अवेलेबल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होगी, तो क्यों नहीं है ना इंडिया के किसी भी एरिया से, किसी भी है ना स्टेट से, किसी भी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं बच्चे अच्छे निकलेंगे सर। सर आप देखिए, जब हमने मिट्टी के उससे कुश्ती लड़ना और जब मैट पर आए, जिसका सबसे बड़ा अच्छा आमिर खान ने पोर्ट्रेट किया है उसमें दंगल फिल्म में। हाँ जी सर। किस तरह से कि भाई मैट पर लड़नी पड़ेगी कुश्ती। देखिए वो एक सिंबोलिज्म भी दिखा रहे हैं उस फिल्म में कि किस तरह से आपको, और थोड़ा सा उन्होंने कोच के बारे में भी दिखाया है उस फिल्म में। वो मतलब बिहाइंड कर्टन्स, पर्दे के पीछे बहुत सुंदर चीज दिखाई है उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और आपने वो सीन तो देखा ही होगा जब वो जाते हैं और रेसलिंग फेडरेशन वाले पर्सन के पास और वो कहते हैं कि बेटी को फंड चाहिए, भाई मेरे को पास तो इतना पैसा नहीं है। कहते हैं जी इतना पैसा आता है, इतना मैन रेसलिंग में चला जाता है, उतने के तो आप लड्डू ले आए। क्यों? बिल्कुल तो सर। ऐसे में मतलब स्टेट से एक्सपेक्टेशन, स्टेट ने तो सब सेट कर दिया। अब वो करनाल का जो लड़का था शूटर, काद्यान आई गेस, उसने मेडल जीता। उसके फादर ने, वो वकील हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन की जमा पूंजी लगा दी उसको लाने के लिए आगे। सो देखिए, जब प्रोफेशनलिज्म की तरफ, इलीटिज्म की तरफ जाएंगे आप, तो ये सब चीजें तो पर्सनली आ जाएंगी, फिर प्राइवेट पार्टनरशिप पर आ जाएंगी, पब्लिक फिर पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। Sir, good morning. Myself, Dr. Mukesh, PGBV College, Delhi University. हाँ जी मुकेश जी, प्लीज। सर एक्चुअली नरेंद्र जी ने जो क्वेश्चन उठाया वो बहुत अच्छा था, बट मैं उसी में एक और चीज